जी बच्चों, ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। What is the basic structure of any language? See, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਵਾਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੀਚ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਆਈ ਟੀਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਆਈ ਟੀਚ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਸਬਜੈਕਟ मतलब डूअर। मैं की कहा? जेकर मैं कहता हाँ आई टीच, ठीक है, इत्थे आई जिहड़ा है ये की हैगा साडा डूअर हैगा, करता, जिहड़ा काम करन वाला। एंड रिमेंबर, डूअर का मतलब हुंदा है सब्जेक्ट। हुण दसो, मैं पढ़ांदा हाँ मीन मैं काम करने वाला हाँ। करने वाला जेकर मैं हाँ, इसका मतलब मैं एक्टिवली काम कर रहा। तो दिस इज द एक्टिव वॉइस। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ that is action। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਰਬ ਵੀ ਕਰ। Whenever I said I teach, इसका मतलब है मैं ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, इसका मतलब मैं एक्टिवली पढ़ा ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ इसका ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? I teach। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ I teach ਕੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, that means ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ what, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? मैं कहांगा इंग्लिश। ए ही व्हाट का उत्तर है ना, मतलब आंसर टू व्हाट इज ऑब्जेक्ट। आंसर टू व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ये साडा की हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। उस तो बाद ही मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ सकता हूं, राइट। सुनाओ, आई सेड मैं की पढ़ाता हाँ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਟੂ ਹੂਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ठीक है। आंसर टू whom की हो गया? ए जरा ਇਹਦਾ आंसर की हो गया? आंसर टू whom, किस ਨੂੰ पढ़ा रहा हाँ,
ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ऑब्जेक्ट ही है ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ऑब्जेक्ट ही है ठीक है ਇਹ ਵੀ ऑब्जेक्ट है ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ऑब्जेक्ट ही है ठीक है ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ I teach ठीक है किसनु पढ़ाते हो तब मैं कहांगा I teach the students ठीक है तो की पढ़ाना हाँ मैं कहांगा I teach English एक बेसिक स्मॉल स्ट्रक्चर साडा बन गया सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश एक्टिव वॉइस विच स्ट्रक्चर होवेगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट whenever I ask you subject सब्जेक्ट ਦਾ मतलब ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ऑब्जेक्ट जिस उत्ते काम हो रहा है इसका मतलब है कि सब्जेक्ट काम करने वाला है इसका क्यों की हो गया डूअर हो गया जिस उत्ते काम हो रहा है वो की हो गया साडा ऑब्जेक्ट ਹੁਣ आओ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਝੀਏ ਜੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ मतलब टीचर्स टीच कि इत्थे असी सब्जेक्ट का प्रॉपर नाम दे दिता इंग्लिश विच लिख दिता जेकर इंग्लिश ना लिखते तां की लिखते असी सब्जेक्ट लिखते मैं तुहानू कहा मैं इंग्लिश पढ़ांदा हाँ मतलब यह कि जो पढ़ाउण वाला है वह ही पढ़ांदा है टीचर टीच इंग्लिश टीचर टीच इंग्लिश हुण इस स्ट्रक्चर नू देखो मैं कहा कि टीचर की करता है पढ़ांदा है तो टीचर की हो जाएगा टीचर साडा टीचर साडा की हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा टीच की हो जाएगा साडा वर्ब हो जाएगा ते इंग्लिश की हो जाएगा साडा ऑब्जेक्ट ठीक है टीचर साडा सब्जेक्ट हो गया टीच साडा की हो गया वर्ब हो गया अते इंग्लिश की हो गया साडा ऑब्जेक्ट हो गया हुण थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच वर देखिए क्योंकि भाषा सुन सुन के ही आती है सब तो पहला असी पार्ट्स ऑफ स्पीच विच नाउन की गल करांगे ध्यान नाल देखो नाउन की दसदा है तुसी डेफिनेशन तो सीखी ही होएगी मैं डेफिनेशन लिख रहा हाँ जी देखो तुसी जिहड़ी डेफिनेशन लिखी होएगी वो की होएगी द नेम ऑफ एनी person place or thing is noun ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣੋ the name of any person the name of any person
ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾउन ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਹੀ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾउन ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ the name of any place, the name of any place। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾउन ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਬੋਲ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਾउन ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਨਾउन ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾउन ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ a noun। ਇਸ ਲਈ ਨਾउन ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ डिटेल में एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करा देखो नाउन जिहड़ा है वो एक्चुअल की चीज हैगी है। एक तो हैगा वो नेमिंग वर्ड है, वो की हैगा नेमिंग वर्ड, दैट इज नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। उन नाउन की डेफिनेशन सुनो। whatever defines a name, whatever common or proper or whatever it is called a noun। फॉर एग्जाम्पल ए की है, ए कोई चीज है, ए एक थिंग है तो तुसी कहोगे ये या ते पेन है या मार्कर है। जेकर तुहानू ना नहीं पता तुसी इहनू की कहोगे, तुसी तो इहनू थिंग ही कहोगे ना, चीज कहोगे। नाउन किसे नू किसी भी थां ते लगाया जा सकता है, सब्जेक्ट अते ऑब्जेक्ट की जगह ते लगा सकते। ठीक है, इस करके एक चीज यह होगी तो दूसरी चीज की निकल के आई, comes in place of subject and object, comes in place of subject and object। कुछ बोल सकते हैं, कुछ और सोच सकते हैं। जेकर मैं कहा कि आई टीच द स्टूडेंट्स, जेकर मैं कहा जेकर मैं कहा आई टीच द स्टूडेंट, उन स्टूडेंट तो पहला भी आ रहा है। एक ही कह रहा है कि जेकर तुहानू थोड़ा जिहा याद होए ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा कि द की हैगा एक आर्टिकल है, द की हैगा एक आर्टिकल है। द स्टूडेंट ਦੇ ਨਾਲ लगाया है कि ਅਸੀਂ आई टीच आई द टीच लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। द आई टीच लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये जिहड़ा आर्टिकल ਇਹ एक तरह का पहला ही दस देता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो नाउन ही होगा। ठीक है, मेरे बाद आर्टिकल ये दस देता है कि मेरे बाद जो भी आने वाला है वो आर्टिकल ही होगा। तो देखो he is a good student, he is a good student।
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। इसका मतलब ये नहीं है कि गुड नाउन है, क्योंकि तो सानू पता है आर्टिकल है। कभी सुनिया है अ गुड, अ स्टूडेंट का सुनिया ही होएगा या ए स्टूडेंट का सुनिया ही होएगा, अ गुड या ए गुड नहीं सुनिया होएगा। इसका मतलब ये होया कि जो आर्टिकल होता है वो डिटरमाइन करता है कि मेरे बाद आउन वाला या मेरे बाद जो भी आएगा वो नाउन ही होगा। डिटरमाइन करने वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डिटरमाइनर कहते हैं। डिटरमाइन करने वाले को कैसे व्यक्ति कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। ठीक है, राइट, समझ लगी। इस करके तीजी डेफिनेशन या तीजी चीज की निकल के आई, तीजी चीज है निकल के आई इंडिकेटेड बाय ए डिटरमिनर। तीजी चीज की निकल के आई, नाउन कौन इंडिकेटेड कर देता है, इंडिकेटेड बाय अ डिटरमिनर। ठीक है, ਹੁਣ कुछ एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, उनकी करिए ऐसी एग्जाम्पल को देख लीजिए। ठीक है, ऐसे चीज नोट कर लो। ठीक है, ए जो मैं लिखवाया इनू नोट कर। ठीक है, नोट कर लो जो है स्क्रीनशॉट ले लो। उन कुछ एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल लिख लगा मैं। हाँ जी, देखो पहली एग्जाम्पल देखो, इतने की आ रहा है, इतने राम आ रहा है। राम इतने की है, सब्जेक्ट है, इज इतने की है, वर्ब है। ये नजर आ रहा है, ये साडा की है, आर्टिकल है। बॉय, ਇਹ बॉय भी साडा की है, नाउन ही है। ਹੁਣ देखो इतने ए दिख रहा है, इसका मतलब इसके अगे नाउन आने वाला है। ਹੁਣ सब्जेक्ट देखो राम, यह भी नाउन है। ਹੁਣ गुड बॉय ਨੂੰ देखो, गुड नाउन है, वर्ब ਦੇ पहले भी नाउन आ रहा है ਅਤੇ बाद ਵਿੱਚ भी नाउन ही आ रहा है। इतने इज की है, वर्ब है। ठीक है, क्या बताओ। अगली लाइन देखो, अगला सेंटेंस देखो, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अगला देखो, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾउन ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ V1 plus ing लगा, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਰਡ ਲਿਖਣ।
इसको ਅਸੀਂ डिटेल च करांगे। इत्थे सानू ये पता है कि स्विम तो वर्ब है, पर इत्थे स्विम प्लस ing लगा होया है। जेकर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगे तो सब्जेक्ट की जगह ते आवे तो इसनू इसनू की कर दिंदा है, तो ये इसनू की बना दिंदा है, नाउन बना दिंदा। की बना दिंदा है? नाउन बना दिंदा है। इस करके इत्थे स्विमिंग की है? नाउन ही है। ठीक है, अगला देखो तीजा। तीजा की है आई डिड माई बेस्ट। ठीक है, आई जड़ा है, आई क्या है साडा सब्जेक्ट है, डिड वर्ब है, ते माई की है, माई साडा डिटरमिनर है, अते बेस्ट की है साडा ऑब्जेक्ट। हुण डिटरमिनर सानू ये दिख गया, इस करके इसके बाद माई जड़ा है सानू डिटरमिनेंट है। ठीक है, इसके बाद जो आया वो नाउन ही होवेगा, भावें बेस्ट सानू पता है वर्ब हुंदी है, गुड बेटर बेस्ट हुंदा है। इसनू असी वर्ब चैप्टर में डिटेल च करांगे, पर इत्थे कादा काम करदा पे, इत्थे नाउन का काम करदा। ठीक है, अगला देखो चौथा सेंटेंस, टू अर्न इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ठीक है, टू फॉरगिव डिवाइन। हाँ जी देखो, टू अर्न हुंदा है गलती कर, टू दे बाद हमेशा ही वर्ब दा बेस फॉर्म आता है, इसनू तुसी याद रखो। ठीक है, टू दे बाद जो भी आता है वो हमेशा ही वर्ब दा बेस फॉर्म आता है, इसनू तुसी याद रखना है। ठीक है, ते टू प्लस वर्ब दी बेस फॉर्म, ठीक है, वो साडा की बन जाएगा, वो बन जाएगा साडा इनफिनिटिव, वो साडा इनफिनिटिव होएगा। ठीक है, इनू डिटेल च करांगे असी। अगला देखो फिफ्थ, आई वेंट फॉर ए राइड, या ऐसे भी लिख सकते आई वेंट फॉर ए वॉक। इथे राइड एंड वॉक दे अगे ए लगा है या अ लगा है, इस करके ये नाउन होएगा, इस करके की होएगा, नाउन होएगा। फॉर एग्जांपल दिस क्वालिफिकेशन इज अ मस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। इथे अ मस्ट जेकर मैं बोल रहा हाँ, इस करके ए आउन नाल ए की बन जाएगा, की बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। इथे असी ये समझते हाँ कि नाउन जिहड़ा है वो सब्जेक्ट अते ऑब्जेक्ट की जगह ते ही लग। ठीक है, मैंने उम्मीद है तुहानू थोड़ी बहुत समझ लगी जाएगी, लगी होएगी। बाकी हर एक चीज नू असी डिटेल विच ही करना है, ये फिलहाल मैं तुहानू ओवरव्यू एक दे रहा। अगे देखो, हाँ जी, अगे नैक्सट जिहड़ी चीज असी करांगे, जिहदा असी ओवरव्यू लवांगे, वो हैगा साडा नाउन तो बाद प्रोनाउन। ठीक है, जिवें कि मैं हुणे तुहानू दसदा पिया ही, जेकर मैं लिखना दिस qualification is a must for this examination। हुण सुनो, वर्ब दे पहले तो नाउन होवेगा ही, ये किस तरह पता चलेगा, दिस देना। ठीक है, इस करके ये की होएगा, ये साडा की होएगा, ये नाउन होएगा। इसके पहले क्वालिफिकेशन है, हाँ ए भी की है, नाउन ही है। हुण अगे अ आ गया जो कि आर्टिकल,